रहे, सजग रहे अभियान। अंग्रेजों के चंगुल से देश को निकालने के लिए बापू यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में यूं तो कई छोटे बड़े आंदोलन हुए, कुछ ऐसे भी आंदोलन थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल कर रख दी। आइए जानते हैं गांधी जी के बड़े आंदोलनों के बारे में। पहला, चंपारण आंदोलन। चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला आंदोलन था जो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उस समय अंग्रेजों और उनके पिट्ठो जमींदार भूमिहीन मजदूर और गरीब किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन बापू ने चंपारण पहुंचकर आंदोलन का शंखनाद किया। Gandhi remained in touch with the mission during the progress of the constitutional negotiations. Simla was fixed as the venue for further talks. Abul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, Khan Abdul Ghaffar Khan and Sardar Vallabhbhai Patel arrived in the first week of May to represent the Congress viewpoint in the conference. Gandhi accepted the delicate role of advisor to the cabinet mission and came to Simla having full faith in the mission's intention. The pourparlers continued at the Viceregal Lodge, but the conference could not achieve an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League and broke up on May 12th. After the failure of the Simla conference, the cabinet mission set forth its own plan on May 16th, rejecting the partition of India on defense, economic and administrative grounds. As the crux of the solution, असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद 1 अगस्त 1920 बापू ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया कि जो भारतीय उपनिषेधवाद को खत्म करना चाहते हैं, स्कूलों, कॉलेजों और कोर्ट में ना जाए और ना ही कर चुकाए। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के असहयोग की शुरुआत थी। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों में से एक है। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी गांव 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। उस समय बापू ने दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा था। Does not grant your demands, what course of action will you follow then? Of course, civil disobedience and all other phases of Satyagraha are always at our disposal, but whether we shall resort to this weapon immediately or what other steps we shall take, I cannot judge at present. If England grants your demands, Mr. Gandhi, do you intend to have complete prohibition in the new Indian states? Oh, yes. Absolute prohibition? Absolute. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before. Do you expect England this time will give India full self-government?
That also is more than I can say. But you are hopeful. I am an optimist. You are an optimist. If you go to the second round table conference, will you go attired in native Indian dress or will you prefer European dress? I shall certainly not be found in European dress. And if the weather permitted, I should present myself exactly as I am today. Yes. And if the King of England invited you to dinner at Buckingham Palace, you would go in your customary Indian dress. In any other dress, I should be most discourteous to him, because I should be artificial. If England does not grant your demand, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to jail. Would you be prepared to die in the cause of India's independence? दलित आंदोलन समझौते के बाद गांधी जी ने खुद को पूरी तरह से हरिजनों की सेवा में समर्पित कर दिया था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। 8 मई 1933 से उनका यह आंदोलन छुआछूत को समाज से मिटाने के लिए शुरू हुआ था। बड़ी अजीब विडंबना है कि देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम जाना है। गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमजोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो ना कर सके, और वह हथियार है अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि आंख के बदले आंख फोड़ने तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उनका ये भी मानना था कि ऐसी पढ़ाई जो आपके हुनर को बढ़ावा ना दे वो बदतमीजी की पढ़ाई है। गांधी जी और तमाम नेताओं, सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष में 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचारधारा है। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।